दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल है तो यूपीएससी इंटरव्यू में या फिर किसी भी आरसीए इंटरव्यू में जैसे आतिया फाउंडेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डू यू चूज पॉलिटिकल साइंस एज योर ऑप्शनल, राइट। देखिए क्या है कि इसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक आइडियल आंसर ये हो सकता है, आपको बताना है कि आई चूज पॉलिटिकल साइंस बिकॉज इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, हाउ पॉलिसीज आर मेड एंड हाउ डेमोक्रेसी फंक्शन. It is directly related to public administration and governance, which are essential for an IAS officers. And I enjoy reading Constitution, political thinkers and international relations. आपको ये लाइन बोलना है क्योंकि आपको ऑप्शनल है, तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तभी तो आपने लिया है. And studying political science has improved my analytical thinking and political process and decision making power basically. तो आपको जो है ना इतना आंसर देना है, क्रिस्प आंसर बेसिकली. सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई IAS ऑफिसर कंप्लीटिंग हम मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस है. मतलब कि अगर आपने मास्टर किया है पॉलिटिकल साइंस में फिर आप IAS क्यों बनना चाहते हैं. तो बताना है कि जो माई मास्टर गिव मी थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज. थ्रू UPSC आई वांट टू अप्लाई दैट नॉलेज इन प्रैक्टिकल सोशल लाइफ बेसिकली. सो एज एन IAS आई कैन कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस एंड इम्प्रूव पब्लिक पॉलिसी डिलीवरी एंड हेल्प सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम एट द ग्रास रूट लेवल बेसिकली. अगर हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं यूपीएससी के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना रियल सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ. ये सबको बताना है. व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस. देखिए वो जनरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका आंसर कैसे देना है. इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड पॉलिटिक्स बेसिकली. इट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट्स एज वेल and how the government runs. This also basically tells by, I mean we get information by political science only. Then the next question can be asked, is political science a science or art. Actually it is a combination of both. Why it is basically science. It is science because it studies political behavior systematically, chronological orders, and it also studies cause and effect relationship basically. And Aristotle has said this, it is a science because we study human natures. At the same time it is a art as well, because here we study judgment, negotiation, decision making. So basically it is both social science as well as art. But it is not like a pure science because there is no experiment. But in cause and effect relationship it can be called as a science. Difference between politics and political science, very general question but can be asked. Politics means basically is a practice and political science is basically study. Example, politics means the actual process of gaining, exercising power, conflict resolutions, all these things, making decisions and governing societies. Political science is the study of that politics basically. This is called political science. Next question, what is democracy. Very general terms लेकिन पूछा जा सकता है. Democracy is basically system of government in which people rules, people elect and people choose their representative basically. It is based on equality, liberty, justice, participation, accountability and rule of law basically. What is constitutional morality. This word has been very much emphasized by B.R. Ambedkar actually. Constitutional morality simply meaning adhering or respecting the values of principle of constitutions, justice, liberty, equality and following them basically. यही है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है, आइडियाज़ है ना, उसको स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए. यही है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी. व्हाट इज गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस बेसिकली यू नो व्हाट दैट इन्वॉल्व ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड पार्टिसिपेटरी मैनर बेसिकली. इट इंश्योर दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हाइल रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ. ऐसा नहीं केवल एक सेक्शन को फ़ायदा हो, सभी सेक्शन को फ़ायदा होना चाहिए. वाई शुड बी सिलेक्टिव फॉर RCA. ये क्वेश्चन बहुत जनरल है. This question can be asked. आपको बताना है कि आई एम सिंसियर, डिसिप्लिन्ड, कमिटेड टू बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड इन पॉलिटिकल साइंस. सो थ्रू दिस RCA आई विल गेट गाइडेंस, मेंटरशिप विच विल प्रिपेयर मी इन स्ट्रक्चरल वे बेसिकली. एंड आई विल मेक फुल यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गिव माई बेस्ट टू अचीव सक्सेस बेसिकली. ऐसा आप लिख सकते हैं. हु इज पॉलिटिकल थिंकर इंस्पायर द मोस्ट. दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन एक्चुअली, विच कैन बी आस्क्ड. आपको आंसर क्या देना है. B.R. अम्बेडकर. कोई भी थिंक आप ले सकते हैं, आपको देना है रीजन. फिर
बिकॉज ही बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, सोशल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी, बेसिकली सब्सटेंटिव जस्टिस, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी. एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही लेड द फाउंडेशन फॉर एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. तो ऐसे आंसर दिया जा सकता है.